सर सामने सर उस साइड से सर हाँ उस साइड से प्लीज उस साइड से चलो मुझे थोड़ा नेबर करो डॉक्टर साहब साथ भैया जी कुंडल साहब यार देख के मत दो यार देख के Education, school education, higher education and social ceremony of the first batch of BHMS Medical College, कोटवा। बड़ी मुश्किल हमने पाया है हमने तुम्हें क्या पता कैसे इस महफिल को जिस कश्ती को बरसों से घेर रखा था तूफान ने जिस बड़ी मेहनत से साहिल पे आज लाया है हमने ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया When I say North India, it is Haryana, Punjab and Himachal Pradesh. Worth to mention here that homeopathic system in our state with 11 medical colleges running. But this right here. So it's a new chapter in the medical sciences. Go ahead with the function. I would like to request my principal, Professor Dr. Surendra Kumar Atri sir, to felicitate our chief guest, Madam Sakina Ituji. Please, sir. Thank you. आगे बढ़े नहीं आगे आया नहीं Warmest welcome to our esteemed chief guest, Miss Sakina Itu ma'am, Honorable Minister for Health and Medical Education, School Education, Higher Education and Social Welfare Department. Your presence ma'am, we are really honored and it's a true known fact that this signifies the holistic healthcare in our society. With the coming of allopathic and integrating with Ayurvedic, homeopathy, Unani, it will improve our society with integrative or holistic healthcare. I also express my heartfelt welcome to Dr. Bharat Bhushan sir, KS, MLA Kothua. Sir, your always guidance and help are always inspiring us. Esteemed guests, faculty members, ladies and gentlemen, and most important, the future of homeopathic medicine, that is students, I am delighted to stand before you with the remark that this is the beginning of a new milestone in the history of Government Homeopathic Medical College, Kothua. I will fail in my duties if I don't recognize the contribution of Health and Medical Education Department, Secretary Sir, Additional Secretary Sir, Department of Ayush and Directorate of Ayush, especially Dr. Mohan Singh. It's because of their contribution, they transferred the land, state land
to this college the land which measures around 51 canals at Jasrota, and then they established 30-bed associated hospital in Mahatma Gandhi, that is Associated Hospital of Homeopathic Medical College, Kathua. Then they applied for permission to start the college, and ultimately the letter of permission was received on 24th October 24. So today on 21st January 2025, we have gathered here to witness the new journey of our first batch of BHM students who will be torch bearers of this homeopathic practice. They will be the team leaders with adequate knowledge and intelligence. To the students, I congratulate you on being part of this institution. Your hard work, dedication and patience for learning as well as for serving for the society have made you to this college. And I am sure you will make full use of the opportunities you will get, and we have dedicated faculty, administrative staff, paramedical staff and sportive staff that will shape you. They have a blend of academic knowledge, expertise in practicals, and we have got state-of-the-art practical labs, hospital labs with modern machinery and equipment. You will be given a campus which will be ragging free. You will have 24/7 central library facilities. You will have, rather we are trying, and as you begin this new chapter in your academic journey, I urge you to strive for excellence, to embrace the challenges with courage and determination, and to always uphold the values of integrity, compassion that form core of the homeopathic practice. As we inaugurate this chapter, that is Government Homeopathic Medical College, Kathua, let us work together to uphold the highest standards of education, medical education, research and patient care. Let this college, that is Government Medical College, Kathua, become center of excellence for medical education, research, patient care and management. Together we can create a community that values compassion, innovation and excellence in the practice of homeopathy. To the parents present here, I extend warm congratulations to you and of their strength, and since now we are joining with us, we will ensure that they get good quality education. We will care them, hold them, nurture them so that they become good physicians and skilled physicians. In the end, I welcome you all and I wish to the new batch of homeopathic students very enriching and fulfilling career. Thank you. Definitely. Government is very generous for Principal GHMC Kathua, ex-MLA, faculty members, professors, dear students, Adab, Namaskar, good morning. ये आज एक नया सफ़र जो आप सबके लिए शुरू हुआ है, और सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि ये सफ़र जो आज यहाँ पे शुरू किया है, आपने एक नई शुरुआत की है। इस सफ़र में आप आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो नया कॉलेज जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसकी आज एक बैच जिसमें 63 स्टूडेंट्स हैं,
जिसकी शुरुआत आज से होगी। और यहाँ तक पहुँचने में, इस कॉलेज को बनाने में जिन सब का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे एक्स डायरेक्टर मोहन सिंह जी हो, उन्होंने भी बहुत काम किया है इस फील्ड में। आयुष में तो उन्होंने एक नई दिशा दी हुई है और नए नए प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, आज कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ अभी अंडर प्रोसेस है। जिन्होंने, चाहे वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसको बनाने में काम किया है इस कॉलेज को, चाहे वे जितनी भी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना रोल किया है, और सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से इसकी शुरुआत यहाँ की है, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस तरह कॉलेजेस की और ज़्यादा ज़रूरत है। हम ज़रूर उनको लिखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरह कश्मीर में भी एक कॉलेज होना चाहिए, जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है। जम्मू में एक शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट आगे एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल जो है वो ज़रूर पुटअप करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए अपनी तालीम, अपने प्रोफेशन को कंप्लीट करने में। डॉक्टरी जो है ये एक ऐसा एक प्रोफेशन है जिसको अल्लाह ताला के बाद अगर लोग किसी पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर पे करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, वो जब घर से निकलता है और उसकी सारी उम्मीदें जो हैं वो एक डॉक्टर के ऊपर होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत नेक प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और खुशकिस्मती ये है कि जो यहाँ के आपके ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, वो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी एक डॉक्टर रह चुके हैं। और मेरा इस प्रोफेशन से बहुत लगाव है। लगाव इसे मैंने होश संभाला तब से मेरा एम यही रहा कि मुझे एमबीबीएस करना है, किसी भी सूरत में मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले क्या होते हैं, उसके आगे इंसान का जो बस है वो नहीं चल पाता। और जब मैंने एमबीबीएस की सीट मुझे मिली, जब मैंने उसके लिए पढ़ाई की और वो सीट हासिल की हुई है, लेकिन जब मेरा जूनियर फाइनल तक में पहुंची गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं, लेकिन उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हुए जिसको मुझे फिर अधूरा छोड़ना पड़ के पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पड़ा। पॉलिटिक्स कभी मेरा एम नहीं था, डॉक्टर बनना मेरा एम था। और बचपन से अगर मुझे कभी घर में यही कहता था कि आप डॉक्टर नहीं बनो, कुछ और बनो, तो मुझे उसके साथ आर्गुमेंट हो जाता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि चले डॉक्टर ना सही, लेकिन डॉक्टरों की मिनिस्टर तो मैं कम से कम और यहाँ हम लोग जो एज डॉक्टर शायद मैं नहीं कर सकती थी, आज इस प्रोफेशन की मिनिस्टर बन के शायद मैं वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ इस डिपार्टमेंट में। मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी उम्मीद यही है। और ये ख्वाहिश और उम्मीद जो है, जो सरकार, जिस सरकार की क़ियादत हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और लोगों ने बड़े मुश्किल से निकल के ये सरकार बनाई है, और टफ टाइम लोगों ने देखा है, इस सरकार को वोट दिया है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना है, चाहे वो किस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज़ ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम सब की कोशिश यही है, और मुश्किल से लोगों ने सपोर्ट जो इस सरकार को दिया है इस टाइम पे, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही मिशन है, यही एम है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर कुछ कर सकें। और उसमें सबसे अहम अगर कोई डिपार्टमेंट है, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो,
जिस डिपार्टमेंट के कलमदान मेरे पास इस टाइम है वो आम लोगों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, वो हर घर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हो, उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के हर तबके से है, हर लोगों से है। इसलिए हम सबको ये फैसला करना होगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो हम कर सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमें करना है। एज डॉक्टर आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये कोई आसान टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा मुश्किल टफ जॉब है। क्योंकि मैं समझती हूँ, जब मैं मिनिस्टर बनी हूँ हेल्थ की, पहले मैं समझती थी कि डॉक्टर बनना एक खुशी की बात है, लेकिन जब मैं मिनिस्टर बनी तब मैं जब मुश्किलें देखती हूँ डॉक्टर्स की, जब मैं परेशानियां देखती हूँ डॉक्टर्स की, और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं डॉक्टर बनती तो ये मुश्किलें मुझे भी फेस करनी थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार आपके साथ है। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वक्तन फवक्तन यही हिदायत देते हैं कि हमें लोगों के लिए काम करना है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है राजौरी में, और जब हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चला कि वहाँ पहले इंस्टेंस में कुछ 5 लोगों की डेथ हो गई है, जो बदकिस्मती से हुआ, नहीं होना चाहिए, और उसमें ज़्यादातर जो मरे हैं वहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसी तरह उसी वक्त दिन रात हमने कोशिश की है कि आखिर क्या बात है, अगर ये कोई वायरस है, कोई इस तरह की डिजीज़ है। एकदम से एक पैनिक शुरू हो गया था, लेकिन जब धीरे धीरे सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, चाहे वो 3,500 लोगों के टेस्ट हुए, चाहे वो उनके साथ वहाँ पे एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीमें रखने की बात हो, उसके बाद जब पता चला कि जब दूसरा इंसिडेंट हुआ कि ये कोई वायरस नहीं है, जब तक हम इंतज़ार करते रहे, जो हमने उनके टेस्ट करवाए, चाहे वो बाहर भेजने पड़े, पुणे की लैब में, लखनऊ की लैब में, बॉम्बे की लैब में, चाहे दिल्ली की लैब में, और हमारा जो जम्मू का जीएमसी है वहाँ भेजने पड़े। लेकिन वो टेस्ट जो थे, चाहे वहाँ जो फूड आइटम्स वो इस्तेमाल करते थे, उनका जब जांच हुआ तो वहाँ से पता चला कि कोई वायरस नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। वो सारे टेस्ट जो आए वो नेगेटिव आए। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद जब सारे रिपोर्ट्स हमने सामने रखे, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आखिर क्या है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक स्टेप उठाया। हमने कहा कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको एक तहकीकात होना है, और वो तहकीकात कौन कर सकता है? वो जम्मू कश्मीर की पुलिस ही कर सकती है। तो वो तहकीकात शुरू हमने पहले ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही सारे स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि वो लाजमी था, हमारा फर्ज था, जो हमारा रोल था वो रोल हमने अदा कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब हर आधे घंटे में 1 घंटे में हेल्थ सेक्टर की मीटिंग बुलाते थे, जो कंसर्न थे। हमने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, डॉक्टरों की सारी टीम, चाहे वो HODs थे हमारे, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज थे, हम खुद गए वहाँ पे। लेकिन अब ये जो इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है, मैं मीडिया के जो हमारे भाई हैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन्होंने इसको उजागर किया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और जो भी उसमें निकल आएगा वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और सरकार ने पहले ही स्टेप्स उठाए हैं जो भी स्टेप्स उठाने थे। लेकिन मैं आपको यहाँ, क्योंकि ये मौजू से हटके बात थी, लेकिन रिलेटेड तो थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, लेकिन थोड़ा, क्योंकि बाद में जब मैं निकलती यहाँ से, मेरे मीडिया के भाई मुझे ज़रूर पकड़ते कि राजौरी का इंसिडेंट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे इनको ये क्लियर कर दूं। मैं एक बार फिर सारे जो यहाँ पे आपके पेरेंट्स आए हुए हैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उनके बच्चों ने आगे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है। उनकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहें, और हम सब पूरी सरकार जो है हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे, मेहनत करें, काबिल डॉक्टर बने, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद आपसे हो।
लेकिन फिर बाहर मत चले जाइए। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ फाइलें एनओसी किस लिए, रेजिग्नेशन एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर का, वो मत करिए, अपने लोगों की खिदमत करिए। बजाय आपको कम कहीं पे इंसेंटिव मिले, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते हैं उसमें आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ताकि आपने अपने लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत किया। बाहर भी लोग अपने हैं, लेकिन पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें, जहां से हमने ये डिग्री ली है। और हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अलग डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जो हमारे पीजी करने के लिए बाहर से स्टूडेंट आते हैं, पीजी करके वापस चले जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सर्विस नहीं देते हैं। हम एक बॉन्ड अब बना रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहा है ये प्रोसेस केस, ताकि वो जब पीजी जम्मू कश्मीर से करके जाएं, सबसे पहले वो हमारे जम्मू कश्मीर में 2-2.5 साल का सर्विस दे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो कंट्रीब्यूशन करें जो जम्मू कश्मीर से उनको मिलता है, वो कम से कम कुछ % वो भी वापस करें। एक बार फिर प्रिंसिपल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपकी सारी टीम को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, और जो आज अब आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको आगे काम करना है, पढ़ाना है, यहाँ पे बच्चों को आगे के लिए तैयार करना है, उसके लिए आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। And discipline. Submitting myself to my guru. With complete. Act like a son. My action shall be guarded. And free from indiscipline. And envy. In my deal I'll be patient. Obedient. And calm. I shall aim my full and ability. I shall always use my knowledge. Men are wealth. Immorality should not figure even in my thoughts. My dress ought to be decent. Yet impressive. And personality confidence inspiring. Higher education, Shri Chand Shore ji, Additional Secretary, JKS, Shri Surinder Mohan ji, Ramzan साहब, चाड़क जी ADC, DDC और XMLA हमारे सारूचंद जी, हमारे स्पेशली गेस्ट जो है डायरेक्टरेट से असिस्टेंट राकेश रैना जी, कश्मीर से आए हैं स्पेशली डॉक्टर सूजा जी, और बहुत सारे हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, GMC का स्टाफ, प्रोफेसर और सारे हमारे जितने भी गेस्ट हैं डाइस पे हैं, डिस्ट्रिक्ट आयुष अफसर, CMO कठुआ, मेरे कुलीग्स, फैकल्टी मेंबर्स, प्रेस्टिजियस डे पे, पवित्र डे पे जहाँ पे आए हैं आज, तो मेरा काम तो वोट ऑफ थैंक्स है। लेकिन इस कॉलेज के बनने के अंदर पिछले 30 साल से जो हमारे डिमांड थे, बहुत सारे लोग जो थे हमारे फैकल्टी के मेडिकल ऑफिसर्स सारे जो है मैम प्राइवेट कॉलेज से आए थे। वो प्राइवेट कॉरपोरेट कॉलेज के जिसके पास पेरेंट्स के फीस लेने के लिए पैसे नहीं थे। और मैं 92 का ग्रेजुएट हूँ। जब हम बाहर से करके आए हैं तो हमें पता नहीं था करना क्या है और डिग्री क्या था, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम जो डिपार्टमेंट था यूनानी और आयुर्वेदा या एलोपैथी था। तो हम स्टूडेंट लाइफ में जैसे अभी स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे कि करें क्या, बहुत मुश्किल में पेरेंट्स कहते थे आप डॉक्टर हो तो आप कुछ करो। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो उस टाइम के डॉक्टर कहीं पंजाब में हिमाचल में प्राइवेट जॉब करते थे। हमारे मैम आए थे, चीफ गेस्ट आए थे मैम सकीना इटू जी। उन्होंने बताया कि अभी कश्मीर में भी ये कॉलेज खोलेंगे, फिर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को मिलेगी, यहाँ पे फिर और अच्छे से फैलेगा।
थैंक यू। Yashvin Dotra, and I'm from Kathua itself, and I'm very happy and honored to be standing over here, and all of this is possible just because of God's grace and my parents who supported me in everything, like from studies to coming up over here, and my teachers as well who supported me to come over here and study, and I'll definitely study good and become a good doctor. तो किस प्रकार से सोसाइटी को सर्व करना, यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव आल्सो टेक द प्लेस एंड टू सर्व द सोसाइटी एंड कंट्री। Yes, I'll definitely serve as a good doctor, and I'll become a good doctor, and जिसको भी मेरी help होगी I'll definitely do it, no matter what, no matter I'm tired or what, but I will always be ready to help everybody. क्या देखते हैं होम्योपैथी का फ्यूचर कितना अच्छा है अभी आने वाले टाइम में? फ्यूचर तो देखो, जैसे हमारे लेक्चर्स ने मतलब लेक्चरर जो है प्रोफेसर्स, उनने भी बोला था जब उनने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो यहाँ पे कुछ भी होम्योपैथी का फ्यूचर नहीं था, बट लेकिन उन्होंने उनको एक उनके प्रोफेसर ने पूछा था कि आपको होम्योपैथी का कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी यू आर रेडी टू डू इट, एंड दे सेड दैट nobody knows the future, but still जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग दिया है, एंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर दिस कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो एवरीथिंग विल बी ऑन द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। यू आर हैप्पी टू जॉइन? यस, आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। मेरा नाम कशिश है और मैं जम्मू से हूँ। आज फर्स्ट डे है इंडक्शन हुआ जी। तो किस प्रकार आप देख रही हैं अपना फ्यूचर जो है होम्योपैथी में किस प्रकार ब्राइट करना चाहती है, पेशेंट को कैसे सर्व करेंगी? ओथ में लिखा था कि चाहे जो भी हो, हम टायर्ड फील कर रहे हो तो भी हमें पेशेंट्स को देखना है, मतलब सबसे ऊपर अपने पेशेंट्स को रखना है, तो हम वो ही करेंगे, और मैं अपना फ्यूचर काफ़ी ब्राइट देख रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारी इंडक्शन सेरेमनी हुई, हमारे चीफ गेस्ट ने हमें इतने अच्छे से समझाया, और मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे आई और मैंने ये कोर्स चूज़ किया। लोग बहुत डरते हैं इस कोर्स को लेने से, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये कोर्स मिला। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये ऐसे लो कोर्स है या कुछ ऐसा, ये बेस्ट कोर्स है हमारे लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड। प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय को एक लक्ष्य बनाया है जी, तो उसमें ये कोर्स भी इंक्लूड है जी। तो क्या देखती हैं, उन्होंने पीएम ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पहले से इसको एक अच्छा रिकॉग्नाइज दिया, रिस्पेक्ट दी है जी, उनकी वजह से ही हमारे इस कोर्स को ज़्यादा ग्रोथ मिली है, एंड हम थैंकफुल करते हैं, हम थैंक्स हैं कि उन्होंने हमें ये कोर्स दिया और यहाँ पे हमें एक अच्छी बिल्डिंग दी, एंड अब बिल्डिंग भी जल्दी हमारी तैयार हो जाएगी, और यही बोलना चाहूँगी मैं। पुराने ज़माने में सिर्फ आयुर्वेद का और होम्योपैथी चलता था। जी जी, और अब फिर से वही हाइप होगा, और हम भी एलोपैथी से कम नहीं है, हम इतना बोल देते हैं। थैंक यू बेटा। जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और इंशाल्लाह इससे जो है पेशेंट केयर में बहुत ज़्यादा आगे जो मदद है वो मिल सकती है। क्या देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर को और बढ़ाने के लिए किस प्रकार के स्टेप्स लिए जा रही है? देखिए, हेल्थ सेक्टर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हर मुल्क में, हर रियासत में, चाहे यूटी हो, अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर जो है वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर। इसमें बहुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मुश्किलें भी बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार चाहते हैं कि जो पेशेंट केयर है वो सही से मिल पाए, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो, कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमियां हैं हमारे पास, जिसकी वजह से कहीं कहीं काम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। उसके लिए सरकार काम कर रही है, जो भी कर सकते हैं हम पेशेंट केयर के लिए, जब उनको यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आज जम्मू का जीएमसी भी बहुत वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत कुछ वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। इसी तरह कश्मीर हो, जीएमसी वहाँ का हो, एलडी हॉस्पिटल हो, बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल, हमारा सिक्किम जो एक बहुत प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल है हमारे पास, तो काम चल रहा है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, बहुत सारी चीज़ें जिसकी कमी थी वो हमने लगाना शुरू कर दिए हैं इक्विपमेंट्स की। तो आगे भी इसी तरह काम होता रहेगा, ताकि लोग आसानी से जो है पेशेंट केयर उनको मिल सके और मुतमईन हो सके। जैसे कभी कभार लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, अगर वो यहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक नई शुरुआत है, एक नया सफ़र है। ये जो जिस कॉलेज का आज बैच शुरू हुआ है 63 स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इस कॉलेज को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मुझे लगता है बहुत
मुबारकबाद के हकदार हैं वो। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस कॉलेज में जो 63 स्टूडेंट्स का बैच शुरू हुआ है, मेरे साथ यहाँ के मेरे साथी ऑनरेबल MLA साहब भी हैं, ताकि इनको अच्छी तालीम मिले, आगे जाके ये जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर जोरी में जिस रहस्यमय परिस्थितियों में इस तरह लोगों की मौत हो गई है, MHA की टीम भी आई थी मैम, MHA की टीम भी आई थी। MHA की आपकी टेस्टिंग लैब की बात करें, चाहे 3500 हेल्थ चेकअप्स की बात करें, चाहे आप फूड ग्रेन्स की टेस्टिंग की बात करें, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसके लिए हमने 10-15 दिन इंतज़ार किया, क्योंकि आपको एक FSL रिपोर्ट में आने में कम से कम 15 दिन 20 दिन लगते हैं। तो उसके लिए इंतज़ार था। हमने अपना काम जो हमारा इस गवर्नमेंट का काम था हमने कर दिया था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था। हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे बैठे हुई थी, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, उनके सारे HODs हो, कंसर्न डॉक्टर्स हो, एम्बुलेंसेस हो, ये जो मास्क की बात हो, सैनिटाइज़र्स की बात हो, मेडिसिन्स की बात हो, 24 घंटे हमने अवेलेबल रखा। और मैं मुबारकबाद देती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को और बाकी जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, UT गवर्नमेंट ने, वो एक वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमने अपना काम कंप्लीट किया हुआ, तो उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने लास्ट पे यही कहा है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सारे नेगेटिव आए हैं, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए अब पुलिस डिपार्टमेंट ने इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी। वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब क्लियर कर दिया था कि कोई इसमें डिजीज़ नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। अब MHA